نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوا؟ ہمیں جوائن کیا ہے اختیار ولی خان صاحب نے، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے اور رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ اختیار صاحب السلام علیکم اینڈ خوش آمدید۔ تھینک یو ویری مچ جی، وعلیکم السلام ابصار عالم صاحب۔ یہ فرمائیے گا جو کل حملہ ہوا اسلام آباد پہ امام بارگاہ پہ اور 35 لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں، 33 اور سینکڑوں زخمی ہیں، ظاہر ہے اس کا ماسٹر مائنڈ بھی پکڑا گیا ہے اور لوگ بھی پکڑے گئے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک جو نیشنل ایکشن پلان تھا، مثلاً خیبر پختونخوا میں پکڑے گئے ہیں، وہاں پہ اجازت نہیں دے رہے وہ ملٹری آپریشن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بیانیہ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت مسلسل ناکام جا رہی ہے، اس سینس میں کہ اگر ابھی تک لوگوں کے اندر انتہا پسندی اس حد تک ہے جس میں اس واقعے میں نظر آئی ہے، تو پھر آپ کا بیانیہ کدھر ہے؟ تھینک یو ویری مچ ابصار بھائی۔ بات ایسی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان از ویری مچ دیئر، اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے۔ ہاں، ہرڈل ضرور ہیں، آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ایک سیاسی مخالف حکومت ہونے کی وجہ سے جن کا اپنا پرسنل پولیٹیکل وینڈیٹا ہے، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ کبھی کبھی اپنی سیاسی معاملات اور ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے وہ جو ریاستی ٹارگٹس ہیں ان کو بھی وہ ہم سے وہ کر لیتے ہیں۔ اس میں ہمارا جو بیانیہ ہوتا ہے تو وہ اس میں الگ بیانیہ اپنا لے لیتے ہیں، ہماری جو لائن ہوتی ہے وہ الگ لائن لے لیتے ہیں، جو ان کی کوآپریشن چاہیے ہوتی ہے اس طرح وہ کر نہیں پاتے یا کرتے نہیں ہیں، تو وہ ہمیں ایک پرابلم ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو ریسنٹ ملاقات پرائم منسٹر کی ہوئی ہے سہیل آفریدی کے ساتھ، آئی ہوپ کہ اس کے بعد جو ایپکس کمیٹی کی جس طرح کوئک انہوں نے میٹنگ بلائی ہے، آئی ہوپ کہ یہ چیزیں اب درست ہو جائیں گی، اور نیشنل ایکشن پلان پر میرے خیال میں بغیر کسی وقت ضائع کیے عمل درآمد کی، اور اس پہ پوری فورس کے ساتھ پوری انٹینسٹی کے ساتھ عمل درآمد کا وقت ہے۔ آپ اس وقت خیبر پختونخوا میں کس جگہ پہ موجود ہیں؟ میں اس وقت نوشہرہ میں ہوں۔ تو نوشہرہ سے ہی یہ پکڑے گئے ہیں ماسٹر مائنڈ، تو اس وقت بتائیے گا کہ وہاں کیا صورتحال ہے شہر میں، اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں اس بارے میں کہ اتنی انتہا پسند لوگ ان کے ارد گرد رہتے ہیں، حالانکہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، سارا آپریشن ان کی نگرانی میں ہوا ہے، ان کا ایک جوان شہید بھی ہوا ہے، تو لیکن یہ اس طرح آرام سے ہر جگہ پہ رہتے ہیں یہ لوگ اور اتنے انتہا پسند ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ میں آپ سے پہلے آج کئی لوگوں سے میں یہ بات ڈسکس کر چکا ہوں۔ وہ جو جہاں پہ یہ آپریشن ہوا ہے وہ میرا حلقہ بھی ہے، اور وہاں کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بندہ جو تھا جو یہاں پر تھا تو وہ یہاں پر عطر بیچتا تھا، خوشبو، نماز پریزی، مسجد تک آنا جانا سب اس کا ٹھیک ٹھاک تھا۔ کہتے ہیں ہم تو یہ یقین بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا بندہ ہوگا۔ اب سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے کہ کچھ لوگ اگر اس طرح ڈالروں کے عوض اور پیسوں کے عوض، چاہے وہ کتنے بھی ہوں، کتنے ہی پیسے کیوں نہ ہو، اگر آپ اپنے آپ کو بھی اڑا دیتے، اپنے گھر والوں کو بھی اڑا دیتے، اسے پیسوں کا کیا، اس کا بندہ کیا کرے گا؟ اور دوسرا، یہ کون سا عقیدہ ہے، یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سی سوچ ہے کہ ایسی حرکت کرنے کے بعد آپ کی آخرت سنور جائے گی؟ دس از ہاربل۔ تو اس میں لوگ یہ فرمائیے یہی گا، سوچ نوشہرہ کے پاس ہی ثوابی ہے، وہاں پہ کچھ دن پہلے ایک ایس ایچ او جو خطاب فرما رہے تھے، جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے، اگر یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ صوبے کے اندر اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر ایسے لوگ تو پیدا ہوں گے اور تیار ہوں گے۔ یہ انتہا پسندی پہ کیوں نہیں قابو پایا جا رہا خیبر پختونخوا میں؟ یہ آپ نے بالکل درست بات کی، اور آپ نے بڑی اچھی جانب یہ توجہ مبذول کرائی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں سب سے پہلے ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنا چاہیے۔ سیاسی نظریات لوگوں کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، پارٹیز الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ملک ہمارا ایک ہے، مذہب ہمارا ایک ہے، اور انسانیت کے ناطے ہم سب ایک ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم کو اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے، ایک مکالمہ بھی ہونا چاہیے، پبلک کے بیچ میں جا کے یہ مکالمہ ہو اور چاہیے کیوں لوگوں کے آپ کہہ رہے ساتھ ہیں؟ آپ ڈائلاگ ہو۔ حکومت ہیں، وفاقی بیکاز حکومت ہیں سر، آپ، اور آپ ہم کہہ رہے ہیں حکومت چاہیے، میں تو ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں آپ چاہیے؟ میں صوبائی حکومت کو کہہ رہا ہوں،
बिकॉज 13-14 साल से यहाँ पर नहीं, सूबाई पाकिस्तान हुकूमत से तहरीक आप इंसाफ मुकालमा की करें ना, हुकूमत है। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है उनकी इसी हफ्ते, तो उसमें ये यही बातें नहीं कहता हुई? हूं ना कि एपेक्स अब कमेटी की प्राइम मीटिंग भी हुई मिनिस्टर है। अब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आके डायरेक्ट तो डायलॉग नहीं कर सकते ना। डेफिनेटली मैं करूंगा, सोहेल अफरीदी करेगा, उनकी टीम करेगी, हमारी जमात के और लोग करेंगे, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल हो, उसमें एएनपी शामिल हो, जेयूआई शामिल हो, जमात इस्लामी शामिल हो। और ये इस तरह की जगह जब लोग लेते हैं रेंट पर, तो इस पे नजर रखनी होगी। अगर हम नहीं रखेंगे, पुलिस नहीं रखेगी, अवाम ताउन नहीं करेगी, पब्लिक के ताउन के बगैर इस बीमारी का और इस अजाब का मुकाबला करना वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूं कि हुकूमत अपनी जगह पे जो कर रही है वो बहुत करे। जिस तरह मोहसिन नकवी ने बात की है कि एक धमाका हो गया, शायद 99 धमाके हमने रोक रखे हैं, लेकिन फिर भी हमें चीजों को ठीक और है, आगे जाके ठीक ले है, जाना ये बात होगा। दुरुस्त आई है, ऐसे बिलीव ही इन होगा। लेकिन एक से नुकसान बहुत हुआ ना, और इस्लामाबाद में हुआ, यहाँ पे बहुत फॉरेन हुआ। डिग्निटरीज आए हुए थे, प्रेसिडेंट आया हुआ था एक दूसरे मुल्क का, और नो फिर और भी आते नो रहे हैं पिछले दिनों, और भी आएंगे। इंटरनेशनल खबर बनी, और हमारा ज़ाहिर है हम न्यूक्लियर स्टेट है, इंडिया को आपने जंग हराई है, फिर इस तरह हो जाए, बार बार हो। बलूचिस्तान में हो रहा है इतने दिनों से, फिर खैबर पख्तूनख्वा में हंगामे हो रहे हैं, या सॉरी दहशत गर्दी हो रही है। और आपकी जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, वो कल 8 फरवरी को यौम स्याह मना रही है, एक सियासी उसमें जलसे जुलूस में अलीमा खान ने कहा कि बंद कर दो। तो आप नौशहरा में हैं, फरमाइएगा क्या बंद हो रहा है कल नौशहरा और पूरा खैबर पख्तूनख्वा, और सर, बल्कि पूरा सर दिस इज पाकिस्तान? हाउ सर दिस इज वेरी पैथेटिक एंड वेरी डिस्गस्टिंग, यू नो। मतलब कल जो ये वाकया हुआ, मेरे ख्याल में इसके बाद उनको किसी के कहने की जरूरत ही नहीं थी। उनको चाहिए था कि वो कॉल ऑफ कर लेते अपनी तमाम एक्टिविटीज को, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं। और ये वही एक वो बेवकत की रागनी, 17 सीटें, फार्म 47, मेरा मैंडेट स्टोलन हो गया, ये हो गया। ये बातें सुन सुन के लोगों के कान पक गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ताजिरों ने इनकी जो पहिया जाम हड़ताल है, वो जो ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर रखा है। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हैं, पिशावर, स्वात, नौशहरा, कोहाट, चारसदा, मर्दान, उन्होंने ऐलान कर रखा है कि हमारा आपकी शटर डाउन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इनको, इनके लिए तो ये बड़ा अच्छा मौका था। पंजाब में इनके कहने पर कोई बाजार बंद नहीं करता, ना कराची में करता है, ना सिंध में करता है, ना बलूचिस्तान में करता है, ना कश्मीर में, ना गिलगित में। ले दे के इनके पास यहाँ की हुकूमत है, और इसी के बलबूते पर ये सारी शरारत और ये सारी गेम पूरे मुल्क में की जाती है। ये जो डिस्टेबलाइज करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर नहीं सकते। तो यहाँ पे तो लोगों ने इनको आईना दिखा रखा है। आप कल देख लेंगे कि कल शायद कुछ ऐसे बाजार हो जो इतवार को बंद रहते हैं, कल वो भी आपको खुले नजर आएंगे। सुहेल अफरीदी की अपने जो हल्के अच्छा, के, जो उसके जिले के कारखानों मार्केट है, जहां पे लोग यहां से जाते हैं बाड़ा मार्केट में शॉपिंग करते हैं, उनकी जुम्मा को छुट्टी होती है, इतवार को वो खुले होते हैं, कल वो खुले। तो इनके कहने पे तो कोई ना बाजार बंद कल करता, खुलेंगे वो? ना आप किसी ये ने आप बसें, दावा कर रहे हैं वो कल वो खुलेंगे। खुलेंगे कारखाना बाजार? वो खुले हैं, वो खुले हैं, वो अच्छा, भी खुले हैं। ट्रांसपोर्ट भी चलेगी, आपको सब कुछ चलता रहेगा। ये आपको सिर्फ मिलेंगे कहीं एक दो चार चौकों में इकट्ठे होंगे, वहां पर ये जलसे करेंगे, नारे लगाएंगे, कैदी नंबर पता नहीं क्या है, 420, 800 चोर जो भी है, वो रिहा करो, ये करो, हमारा मैंडेट है। वो राम कथा, वो तोता मैना की कहानी ये सुनाएंगे, नेवले और सांप की लड़ाई दिखानी अच्छा, आखिर कि में पता चलें नहीं ये ये देखते हैं होगी हम, या नहीं कल होगी, ये आपने जो चलेगा। दावा किया कल देखते हैं कि पूरा होता है कि नहीं होता। सिर्फ ये फरमाइएगा कि आखिर में मुख्तसरन कि ये जो खुदकुश हमलावर था जिसका ताल्लुक आपके हलके से है, ये 7 मरतबा अफगानिस्तान गया है। तो ये जो बात होती है कि क्रॉस बॉर्डर आना जाना किसी तरीके के तहत हो, पासपोर्ट हो, वीज़ा हो, तो उस पर मुखालफत होती है बहुत ज़्यादा। तो आपके ख्याल में ये वाक़या साबित नहीं करता कि इस तरह की क्रॉस बॉर्डर आमदोरफ्त उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? मेरे ख्याल में हमें अफगानिस्तान के साथ अपने तमाम आओ भगत, जितनी भी हमारी लीगल है, उसको हमें असरनो उसका जायजा लेने की जरूरत है। ये जो बंदा है, ये जो जिसका आप कह रहे हैं कि मेरे हलके में उसके भाई ने यहाँ पर एक रेंटल घर लिया था या कीमतन खरीदा था,
ताल्लुक उनका पेशावर से था, शीरू जंग है उसको कहते हैं, वहां से उसका ताल्लुक था, यहाँ पर आके उसके भाई ने जगह ली हुई थी, तो वो यहाँ पे अपने भाई के पास रहा था। तो अफगानिस्तान के पास ठीक। आने जाने का जितना हमारा अमल है, चाहे वो लीगल है उसको भी रिविजिट करना चाहिए, जो इलीगल है उन बॉर्डर्स पर हमारी जो चेक एंड बैलेंस है उसको मजीद सख्त करने की जरूरत है। और अफगानिस्तान के ठीक, साथ भी तो मैं जाहिर है कहता वो तो हूं आपकी हुकूमत कि नहीं, वफाकी हुकूमत ने करना है ये दोनों काम जी। जो आपने बताया। उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगी। और वक्त हुआ हमारा आज के एडिटोरियल का। आज का एडिटोरियल इस बात पर है कि बोर्ड ऑफ पीस का पहला मुमकिना इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन DC में रखा जा रहा है। इसके बारे में इतलात आई हैं, अमेरिकी अखबार ने यह खबर दी है और उन्होंने कोट किया है सीनियर अमेरिकी ऑफिशियल को और साथ बोर्ड में शामिल 4 ममालिक के सफ़ीरों को। लेकिन ये डेट आगे पीछे हो सकती है। ये अहम इसलिए है कि डिवॉर्स में 22 जनवरी 2026 को, अभी कुछ दिन पहले ये बोर्ड ऑफ पीस का इजलास हुआ था और उसमें जो चार्टर था उस पर दस्तखत हुए थे। 27 ममालिक ने उसको ज्वाइन किया है, उस पर उनके सिग्नेचर्स हैं। उसमें इंडिया शामिल नहीं है लेकिन पाकिस्तान शामिल है। और अभी तक इसराइल ने उस चार्टर पर दस्तखत नहीं किए इसराइल ने, लेकिन इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू वो भी इसमें मौजूद होंगे। और वो बल्कि एक दिन पहले 18 फरवरी को उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वाइट हाउस में मुलाकात भी एक तय है। इसका मकसद ये है इजलास का, और ये बड़ा अहम होगा इसलिए कि बोर्ड ऑफ पीस बना तो गज़ा के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ गज़ा के मसले को ही डिस्कस करे। गज़ा के अलावा दुनिया में जो मसाइल हैं अमन के हवाले से, जंग के हवाले से, उनके बारे में भी ये बोर्ड ऑफ पीस अपना रोल अदा करने का इरादा रखता है। और क्योंकि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का ब्रेन चाइल्ड है और वो ये चाहते हैं कि वो दुनिया में जंगें बंद करवाएं। और इसमें इंडिया अभी तक इसलिए शामिल नहीं हुआ कि इंडिया को ये ख़तरा है कि गज़ा से फारिग होके और रूस यूक्रेन जंग से फारिग होके पाकिस्तान डेफिनेटली कश्मीर का मसला इस बोर्ड ऑफ पीस में उठाएगा या उठा सकता है। इसलिए वो अगर लम्हा आया तो इंडिया के लिए बड़ा एम्बैरसिंग होगा। अगर इंडिया भी इसका मेंबर हुआ तो इंडिया ने अभी तक इसकी मेंबरशिप पे साइन नहीं किए। लेकिन देखना यह है कि जो गज़ा के लिए ये बनाया गया है उसकी तामीर नौ और उसके अमल को आगे बढ़ाने के लिए ये बोर्ड ऑफ पीस क्या करता है, क्योंकि अभी तक गज़ा में अमन तो नहीं आया। इसराइल अभी भी वहाँ पे फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है और वहाँ पे जो वायलेंस है वो जारी है, वहाँ के लोगों के मसाइल जारी हैं। तो इस बोर्ड ऑफ पीस के लिए बड़ा चैलेंजिंग मरहला है। देखते हैं कि इसमें से क्या बरामद होता है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।